Yeah, now the recording is still in the progress. Some of the students they are kindly requested that if it is feasible for them, if it is convenient to them, then please open your camera. That it will make me more comfortable. मेरे को थोड़ा सा सुविधाजनक बना देगा. मुझे लगेगा कि that I am not a robot and I am before you and my student or my friend they are before me. See, after that you would thoroughly enjoy the story. उसके बाद हम उसको story को enjoy करेंगे. जी भाई. Yeah. हमारी बेबी डॉल सी इज देयर. वो तो गजेंद्र सिसोदिया सी इज देयर ऑन द स्क्रीन. वो आ गए हैं भाई. जी. लेट मी let me this one and this is the sharing has to be started and this and now this where it was not this one and how it is to be started. I'd love to take from there. Just before some time I could see that one. See. See. The story is there before you. Yesterday we could read only, I think that one and two paragraphs. Savita is also there. I see. जी Savita ठीक है आप? जी सर. जी आवाज ठीक ठाक आ रही होगी शायद मेरी भाई. जी. जी सर. So yesterday, my friend, that we were reading this one. This was a story that it was Kabuliwala. This was the title of the story, and in the story we had a 5-year-old daughter. Her name was Minnie, and her father he was working. He was a writer like me. He was a writer by profession. Her mother, she used to be very suspicious about that Kabuliwala. That there was a person, his name was, he was, because he was from काबुल, क्योंकि वो काबुल से था तो उसका नाम काबुली वाला, यानी काबुल वाला भी कह सकते हैं, काबुली वाला भी आप उसको कह सकते हैं. And she was very chatty girl. She was very garrulous. She was very outspoken, and she never stopped. That since the time she learned how to speak, since that day she never stopped, and she kept talking. When she was with her father, so once she was complaining about Ramdayal that they had a sentry Ramdayal and he couldn't pronounce the word crow very properly. She was complaining about that one. And now, secondly, she was telling about Bhola, that what kind of the person Bhola is. Bhola is truly Bhola. Bhola means simpleton. Bhola is truly Bhola because he told her that, Mini, do you know how does it rain? Mini, do you know how does it rain? Then when Mini said, no, I don't know. When Mini explained the evaporation system, that there is a heat and from the sea, water evaporate, he said, no, this is the wrong way. It's not at all. It rains when so many elephant they fill their trunk with water and when they spray in the sky and in this way it rains on the earth. So she was telling her father that, Papa, I don't like Bola because he always kept talking a lot without making any sense. Without making any sense, he can talk for a long time. So Papa. He was looking at her, that what she was speaking, how she was speaking, how innocent she was. She was very innocently, she was speaking all these things. And sometime her mother, she chides her, she talked to her in a garrulous tone, in a very, that scolding tone, she talked to her. But father, he was always in favor of her daughter and he always supported her. When suppose that when any days if she was not talking, so at the time it seems very odd, very unusual, very bizarre, very absurd, very awkward, you know. अजीब के लिए 5-7 जो वर्ड होते हैं, absurd होता है, awkward होता है, odd होता है, unusual होता है, bizarre होता है, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता था उसके पापा को. सो द स्टोरी वाज समथिंग लाइक दैट. इस प्रकार की कुछ स्टोरी थी. अब आगे बढ़ते हैं भाई. वी हैव जी. किसी भाई को कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. शुरू धीरे धीरे शुरू करेंगे जी. आई थिंक दैट वी रेडी अप टू फ्रॉम हियर. यहाँ तक शायद हमने पढ़ लिया है कि विदाउट वेटिंग फॉर माई ओपिनियन, विदाउट वेटिंग फॉर माई ओपिनियन ऑन इट, कि मेरा इसके बारे में क्या विचार है, ये बिना जाने ही सी आस्क मी आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से, अचानक से. एकदम से या अचानक से जो होता है कि ये कल मैंने आपको यूं भी बताया था कि कोई भी चीज आसमान से टपकती है. यहाँ ब्लू का मतलब आसमान होता है.
तो कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, उसको आउट ऑफ ब्लू बोलती, पता नहीं वो कुछ कुछ बात कर रही थी और एकदम से कहाँ से ले आए। पहले बोला नीचे के बारे नीचे में। वाला पैरा है सर। हाँ भाई। नीचे नीचे वाला पैराग्राफ भी तो पूरा कर दो। सर इसके डार्क अंदर एंड जो नाइट के वर्ड बाद। मम सर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मम सर? Because हम्म, sometimes children use mom means they they speak sir, मतलब they completed यानी खत्म हो गया उसका, जैसे कई बार कहते हैं ना पानी मम हो गया, खत्म हो गया। तो नहीं वो या फिर मम मम्मी के लिए यूज होगा फिर। यहाँ मम्मी, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मम्मी गार्जियन केयर टेकर। मम्मी कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं। हु ब्रोट यू अप, व्हाट्स यू वांट टू आस्क इज दिस, हु ब्रोट यू अप, आपने इतना बड़ा किसने किया आपको, है ना। मम का मतलब हु हैज बीन योर गार्जियन, हु हैज बीन योर केयर टेकर, हु हैज बीन जैसे हु ब्रोट यू अप, हु हैज बीन योर मम्मी लाइक दिस। काबुली वाला था। हाँ जी। ये लाइन काबुली वाला से शुरू होगी सर, यहाँ तक पढ़ दिया था। ठीक ठीक है, वहीं से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, काबुली वाला से ही शुरू करेंगे। एक बार मम का मीनिंग पूछ रहे थे, तो मम का मीनिंग हुई इज मम टू यू, इसका मीनिंग ये कि आपको किसने पाला है, आपको किसने पाला है। तो शायद मेरे हिसाब से असिस्टेंट लो का मतलब साली तो बिल्कुल भी नहीं है। साली तो क्या पालेगी, भाभी हो सकती है ना। सिस्टर इन लॉ देख वो कहता है आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं एग्जैक्टली तो ये सोचा कि मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं भाभी इसको कह दूं, मेरे को तो भाभी नहीं पाला है, पर मैं इसको भाभी कहूंगा, फिर ये पूछे कि भाभी कौन होती है ना, भाभी ने क्यों पाला, माँ ने क्यों नहीं पाला, कुछ इस प्रकार से। बट टू मिनी आई रिप्लाइड अवॉइडिंग द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था, और इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई बैकग्राउंड या ऐसा कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। परंतु जहां तक मैं मानता हूं ये शायद सिस्टर इन लॉ का मतलब भाई यहाँ पर भाभी ही होगा, शायद हो सकता है। मदर सी माइट गोट एक्सपायर्ड इन चाइल्डहुड, हो सकता है कि वो एक्सपायर हो गए हो। और उसके बाद ये कहती है कि सुशीला बता रही है सर यहाँ तक हम आ गए थे, काबुली वाला, काबुली वाला इस प्रकार से मिनी जोर से खिड़की में से आवाज लगा रही थी। एक लंबा सा सेबी, सेबिली क्लोथ, सेबी से बना है, इसका रूट वर्ड जो है वो सेबी होता है, वाई का आई हो गया, एल वाई लग गया, सेबिली क्लोथ। जब आप किसी भी चीज को काफी दिनों तक पहनते रहते हैं तो वो क्लोथ से भी हो जाता है, थोड़ा सा एक वोर्न आउट टाइप आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा डर्टी टाइप आप कह सकते हैं। एक तो फ्रेश होता है, रिंकल्ड हो सकता है, फ्रेश होता है, रिंकल्ड होता है, साफ धोया, प्रेस हो या नहीं हो एक अलग बात है। पर एक ही ड्रेस को आप तीसरे या चौथे दिन भी पहने रखते हैं तो थोड़ा सा वही फिर सेबी लुक आ जाता है उसमें। That is known as the Sebi and Sebili cloth. A tall and Sebili cloth Afghan street vendor. Afghan street vendor because he belonged to Afghanistan. So that was he was a and he was a vendor. Vendor mean who sell article going home to home, going house to house. He is a vendor. So there was a street vendor उसका नाम, with a turban on his head, अपने सर पर एक पगड़ी पहने हुए था, a bag over his shoulder, a bag over his shoulder, a few boxes of dry grapes in his hand, was passing through the street slowly, was passing through the street slowly। ये लाइन पढ़ के आपके माइंड में एक ढंग की इमेज आ गई होगी, है ना। जैसे ये जो अफगानी होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, 6 या 6.5 इज नॉर्मल हाइट देयर, वहां पर शायद 6.5 के आसपास एक नॉर्मल सी हाइट होती है। सर्दियों की सीजन में कभी हमारे पास भी जम्मू एंड कश्मीर से भी काफी लोग आते हैं, वो इसी प्रकार से वो शायद ये खेस या कुछ इस प्रकार की चीजें वो बेचते हैं। The same sort of the spectrum, it was the same sort of the spectrum. There was a tall, savvy person in with good height, having a soul, having a bag on his shoulder. In the Greek, who we most probably they were a single colored। जो ड्रेस होगी वो एक यूनिफॉर्म टाइप की ही ड्रेस होगी, वो ज्यादा चमक दमक वाली तो नहीं रही होगी। कुछ ही बॉक्सेस ग्रेप्स के अपने हाथ में लिए हुए था, वो पासिंग जा रहा था थ्रू द स्ट्रीट स्लोली, धीरे धीरे जो जा रहा था। आई हैव नो आइडिया व्हाट फ्लैश माय डॉटर्स माइंड, आई हैव नो आइडिया, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि पता नहीं मेरी बेटी के दिमाग में एकदम से क्या आया। एट द साइट ऑफ दिस मैन, जब भी इस आदमी को ये देख, जब इस आदमी, जब उसने इस आदमी को देखा, when she saw at the sight of this man, but the moment she saw him she began yelling। yelling कई बार आया है शब्द शायद मेरे हिसाब से, crying loudly को yelling बोलते हैं, crying loudly। सो आई डोंट नो व्हाट फ्लैश, फ्लैश का मतलब एकदम से पलका सा लगना फ्लैश होता है ना, दूसरा FLESH होता है। सुनीता वो क्या होता है FLESH? जी सुनीता। फ्लैश तो वो होता है, मतलब कि मांस का टुकड़ा।
जी, फ्लैश एंड सोल बोलते हैं ना, आर बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लैश एंड सोल। आर बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लैश एंड सोल, यानी कि आत्मा और जो भी ये फ्लैश है मास, वो ई वाला फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पर फ्लैश का मतलब पता नहीं, मेरे मुझे नहीं आइडिया है कि एकदम से उसके दिमाग में, मेरी बेटी के दिमाग में क्या आया। इस आदमी को देखते हैं, वो एकदम से, बट द मोमेंट सी सॉ हिम, जब उसने को देखा, सी बिगेन येलिंग, एकदम से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा this nuisance with a sack over his shoulder will show up in a moment and I won't be able to finish writing the 17th chapter of my novel। मेरे को तो ऐसा लगे ये न्यूसेंस है, ये जो बकवास है, ये बकवास अब जो है ना, न्यूसेंस का मतलब आप बकवास कह सकते हैं, ये ड्रामा कह सकते हैं। विद अ सेक और इज शोल्डर, ये इस प्रकार से ये झोला लटका के और अभी मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अब इसको बुला ही लिया तो पक्की बात है, ये झोला लटका के और मेरे गेट पर अब आके खड़ा हो जाएगा, और शायद भाई मेरे से तो आज भी ये 17वां चैप्टर आज भी नहीं लिखा जाएगा, है ना। मैंने सोचा, आई थॉट दिस न्यूसेंस विद द सेक ऑफ और हिज शोल्डर विल शो अप का मतलब एकदम से आगे आके खड़ा हो जाना, ऐसे आके खड़ा हो जाएगा इन ए मोमेंट, कुछ ही देर में, एंड आई वोंट बी एबल टू फिनिश राइटिंग द 17th चैप्टर ऑफ माय नोवेल। बट द मोमेंट द काबुली वाला एट हीरिंग मीनीज की आवाज सुन के, ऐसे बोलेंगे मिनी की आवाज सुन के, बट द मोमेंट द काबुली वाला टर्न अराउंड एकदम से जब वो पीछे मुड़ा, with a smile and approach the house, he turned around with a smile and approached the house, और हमारे घर पे आ गया। She dashed inside and couldn't be found anywhere। ममता, इसका लाइन का मीनिंग बताना। सी द मोमेंट, ये आप देखना पूरी लाइन का, बट द मोमेंट काबुली वाला टर्न अराउंड विद स्माइल एंड अप्रोच द हाउस, सी डैश्ड इनसाइड एंड कुड बी फाउंड एनीवेयर। जी ममता। इज ममता देयर द क्लास, है क्या ममता क्लास में? सी मस्ट बी बिजी समवेयर, सुनीता जल्दी से बता दीजिए। कि जैसे ही काबुली वाले ने मिनी की आवाज सुनी, वो एकदम से एक स्माइल के साथ मुड़ा और घर की तरफ आया। लेकिन मतलब जैसे ही उसको घर की तरफ आते हुए देखा, मिनी एकदम से अंदर भाग के अंदर चली गई और फिर वो मतलब दिखी ही नहीं, एग्जैक्टली, पता नहीं बिल्कुल कहाँ सही। छुप गई। हाँ हाँ, कहाँ छुप गई? सी कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर। ये पैसिव में है, एक्टिव में है ये लाइन? सी कुड बी फाउंड एनीवेयर, मे भी पैसिव में ही है, ए बी का क्या मतलब होता है? क्योंकि आखिरी। सर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा नहीं। अच्छा, वाह भाई वाह, ऐसी दुनिया में बहुत सी चीज है जो आपने नहीं देखी, इसका मतलब। श्योर पैसिव में है सर, हाँ जी, पैसिव में है सर। कमाल कमाल कमाल, लड़के इग्नोर करके दिखा दे भाई, इसको एक्टिव यदि बना दिया, वाह कमाल हो जाएगा। नहीं, एक्टिव तो नहीं बना पाएंगे सर, इसमें थर्ड पर्सन का डिस्कस कर रहे हैं ना सर, इसलिए पैसिव में है। थर्ड पर्सन का जिक्र करने से कभी कोई सेंटेंस पैसिव नहीं हो जाता। थर्ड पर्सन का तो मैं भी कर सकता हूँ, दे आर हार्वेस्टिंग देयर, ये दे जो है ना, दे भी थर्ड पर्सन होता है, एंड दे आर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, में वो सामने मेरे वो फसल काटने लग गए, मैंने भी थर्ड पर्सन का जिक्र कर दिया, पर ये पैसिव तो नहीं हुआ। जी भाई, थर्ड पर्सन गलत कह गए सर, कुछ और ऐसा बताओ जिस बात में थोड़ा सा, दैट होल्ड वाटर, जिस बात में दम हो, दैट होल्ड वाटर। He cannot find her. हम्म, He cannot find her. ना वो उसको कहीं पे भी देख नहीं पाया सर। भाई, देख बात ये है कि कल शाम की क्लास, एक बार ये लाइन देख लीजिए, सी कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, ये बात बन गई। सी कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर लाइन तो हमने देख ली है। एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा सा हटाता हूं। दोस्तों, कल शाम की क्लास में एक बात जरूर महसूस हुई थी कि चाहे बात एक ही समझ में आ जाए, पर समझ में आ जाए, है ना। बहुत जल्दी की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, चाहे हम 4 लाइनें पढ़े तो भी काम चल जाए, है ना। जोगिंदर ने ये बात तो मान ली है कि सर है तो ये पैसिव में पक्का हो गया, पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों पैसिव में है। ये बता दे तो मजे आ जाए। जी भाई। ये तो सर एक बार आपके दोबारा, मुख से सर ममता एक एक बार मिनट आ दोबारा, रही, ममता उसके बाद आपकी बारी होगी भाई जी। भाई ये तो आपके मुख से ही सुना था। आवाज साफ नहीं आई भाई साहब। आपके मुख से ही सुनना अच्छा लगेगा सर, ये तो क्यों है।
नहीं कोई बात नहीं, हमारी ममता बता देगी। जी ममता, कर दे सर एक कमाल। बार सेंटेंस दिखाना सर, मैं थी नहीं। She could not be found anywhere. She could not be. She dashed inside the house. मुझे तो सीन बन गया ना। एक सीन जब बनने लग जाए कि सबसे खुशी पढ़ने में खुशी तब मिलती है कि जब आप लाइन को पढ़ रहे हो और साथ की साथ आपकी आंखों में सीन बन रहा हो। उससे कमाल की कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल झूठ है, बकवास है कि हम स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पे नहीं पढ़ना उतना अच्छा, स्क्रीन पे नहीं जितना बुक पढ़ने में जो मजा आता है ना, और साथ के साथ जब हम विजुअलाइज करने लग जाते हैं, इनविजन करने लग जाते हैं, एक शब्द होता है इनविजन करना शुरू कर देते हैं, तो कमाल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सी डैश्ड इनसाइड, है ना, एकदम से किसी की गुद्दी पकड़ के और यूं सर मारे ना, ही डैश्ड हिम, है ना, ही डैश्ड हिम अगेंस्ट द वॉल। जैसे कई फिल्मों में सनी देओल टाइप आपने देखा होगा, ही डैश्ड हिम अगेंस्ट द वॉल, यूं पकड़ के। सो सी डैश्ड इनसाइड द हाउस, ये तो हो गया। जब उसने एक बार बोल तो आई वो खिड़की से जाके, खिड़की ऊपर थी, वो शायद फर्स्ट फ्लोर पे या जहां जहां कहीं भी, तो वो बोल तो पड़ी उसको, ओ कबली वाला, कबली वाला, ओ कबली वाला। और जब वो पीछे उसने मुड़ के देखा और उसने एक स्माइल दी और वो जब घर की तरफ आया तो मिन्नी एकदम से घर के अंदर, एंड सी कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर। ममता, सर इसका फिर ये नहीं हो सकता, नो वन कुड फाइंड हर। कमाल, सुपर। ये जिसके समझ में आ जाए ना, और जिस दिन आ जाए तो उस दिन तो इंग्लिश आ ही जाती है। एक बार फिर बताता हूं मैं सर, ममता सी इज 100% राइट, ममता बिल्कुल सही है। भाई पर सिर्फ ममता सही है इससे काम थोड़ी चल जाएगा, सुशीला को भी तो सही होना है ना यानी सी कुड नॉट बी एक्टेड होता है। जैसे पैसिव की एक खास बात होती है, बी एक्टेड, एक बी की फॉर्म और एक्टेड। आपने भाई साहब थर्ड पर्सन नहीं कहना था, थर्ड फॉर्म कह देते ना, ये कह देते सर इसमें बी एक्टेड है। या बस एक बात होती है कि पैसिव में बी एक्टेड जरूर होगा। सी कुड नॉट बी फाउंड, तो बी फाउंड ये शो करता है, क्यों पैसिव में था, एक बात हो गई। सी कुड नॉट बी फाउंड तो उसको नहीं ढूंढा जा सकता था। अब ऐसा तो कोई होगा जो उसको ढूंढ नहीं सकता था, यानी हम उसको ढूंढ नहीं सकते थे। वी कुड नॉट फाइंड हर, वी कुड नॉट फाइंड हर, सी कुड नॉट बी फाउंड। वी कुड नॉट फाइंड हर एंड सी कुड नॉट बी फाउंड। बड़ी बात है सविता, जी सर। बन गई बात है हमारे सर साथ। मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई थी क्योंकि उसमें आगे जो आया था ना, शी डैश्ड इनसाइड एंड, तो मैं सोची कि ये पूरा फिर आगे वाला तो ये चेंज नहीं हुआ और पीछे पीछे वाला कैसे पैसिव हो गया। अच्छा। आप जैसे एक दिन ऐसा आएगा जब दिमाग की एक दो जो और गांठ है ना और पिघल जाएंगी। कहने का मतलब, पिघलने का मतलब ये कि एक दो बात सही समझ में आ जाएगी। अच्छा अभी ये तो होता बहुत है सारी हैं सर। जी। क्योंकि एक दिन आपने कह दिया था कि सर ये पैसिव में है तो ये नरेशन में कैसे हो सकता है, यानी वो मेरे को बड़ा अब्सर्ड सा लगा था कि यार अभी जो है ना, अभी बात बनी नहीं है इसके, तो अभी बेसिक ही क्लियर। जैसे किसी ने कहा था, एक वो मैं मूवी देख रहा था ना रफ बुक के नाम से, जिसमें मेरे को एक बात समझ में आई थी कि कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा था और जब दूसरा डांस करने लग गया तो वो बड़ा अब्सर्ड टाइप सा कर रहा था। जब मैडम ने एक बच्चे से पूछा कि पहले वाला बहुत सुंदर कर रहा था और ये वाला ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या कारण था, वो कहने लगा मैम अभी तो इसकी बेसिक ही क्लियर नहीं है। जब तक बेसिक का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कोई काम करना शुरू करता हूँ, मान लीजिए मैं खेती बाड़ी शुरू करता हूँ, मैं हॉर्टिकल्चर शुरू करता हूँ, मैं एनिमल हस्बेंड्री शुरू करता हूँ, मेरा एक बेसिक बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, है ना, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यदि ये क्लियर नहीं है तो पक्की बात है, डेफिनेटली 100% अनसक्सेसफुल जाएगी बात। यदि आपकी इकिगाई का मतलब चाहे आपका विजन ये क्लियर है कि भाई साहब दिन मेरे को तो गोबर गिरने में मजे आएंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, भाई पालेंगे, फिर भैंस पालेंगे, है ना, तो बात बनेगी। ये नहीं कि ठीक है वो इतने कैलकुलेटर जब लेके बैठ गए ना, इतने का दो, इतने का घास, इतने का वो, फेल, फेल पक्का फेल, है ना जी। एनीवे भाई बात कर रहा था, क्या बात कर रहे थे जी, भूल गया। सो सी डेस्ड इनसाइड, एकदम से अंदर गई, एंड कुड नॉट बी फाउंड, और वो ऐसी बोरी बारी थी उनके पीछे जाके छिप गई होगी कहीं। सी कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, सी हैड दिस childish fear, she had this childish fear that if someone looked through the bag of this Afghan man, several living children like herself would be found in there। हमारे साथ पुष्पा मोर हैं। पुष्पा जी एक बार इन दोनों लाइनों का यदि आप मीनिंग बता दें तो हमें अच्छा लगेगा जी।
पुष्पा जी, एक बार जोर से पुष्पा इन लाइनों को पढ़ दीजिए, मीनिंग बता दे, अच्छा लगे। She had this childish fear that if someone looked through the several living children like herself would be found in there. She had this childish fear. उसका ये बचकाना डर था that if someone looked through the bag of this Afghan man. सर इसका क्या मतलब होगा through the bag? टू द बैग में से थ्रो तो ठीक है सर, बैग में से सर आई हैव डाउट। सर कोई जी, सिसोदिया बता रही थी, सिसोदिया प्लीज। अब कोई भी सर- देखेगा बैग से देखेगा फ्रॉम अफगान ऑफ दिस अफगान मैन, इस अफगान मैन को सेवरल लिविंग चिल्ड्रन, सभी बच्चे लाइक हरसेल्फ, उस जैसे, वुड बी फाउंड इन देयर, मिल जाएंगे, जी, यहाँ मिल जाएंगे। भाव बता देंगी सिसोदिया, भाव बता देंगी बहुत अच्छे अपने शब्दों में। जी सिसोदिया। सर उसको ये बच्चों वाला भय था कि अगर कोई अफगान के बैग में देखेगा तो उसके जैसे कई बच्चे उसे उसमें मिलेंगे जो उसने किडनैप कर लिए हो सर, इस टाइप से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही है कि सर सुनिए सर, जी, इसमें दैट और इफ ये साथ साथ इसका थोड़ा सा बताइए सर। कोई बात नहीं, ये साथ साथ आ जाता है। आप नरेशन वाली बात पढ़ रहे हैं कि या तो दैट आएगा या इफ आएगा, WH वर्ड है तो कुछ नहीं आएगा, आप वो बातें सर, याद यस कर सर। रहे हैं। जी जी जी, उनको बोल दीजिए भाई एक बार। ओके। मैं ये कह रहा हूं कि मिन्नी को ये डर था कि ये जो लंबा सा आदमी है इसके पास इतना बड़ा सा बैग है। उसने कहीं पर सुना हुआ था, उसने कहीं ये सुना हुआ था कि यदि इसके बैग में कोई देख ले, ये जो बैग है ना इसमें कोई देख ले, तो मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे इसने काफी किडनैप कर रखे होंगे। ऐसे जो बच्चे आपस में बात करते हैं ना, ऐसे बात करते हैं। अभी होली वाले दिन की बात है, मेरा बेटा और कुछ और बच्चे यहाँ खेल रहे थे, एक जो पानी की टंकी है उसके पास खेल रहे थे। वहां पर कुछ जैसे उस दिन रंग वंग लगाए हुए थे, तो कोई बच्चे आ गए होंगे बाइक वाइक पे उसके पास, उनके पास है। तो फिर वो सारे मेरे पास भाग गया कि पापा किडनैपर आए हुए थे, किडनैपर आए हुए थे, और इस प्रकार से इससे पूछ रहे थे, पता पूछ, वो ये पूछ रहे थे कि क्या हमने कोई ऐसा काला सा बच्चा इस साइड जाते देखा। फिर उन्होंने उसी साइड एक तेज बाइक भगा ली। तो आपस में जिक्र किया होगा कि जैसे किडनैपिंग क्या सीन होता है, कैसे इस प्रकार से करते हैं। तो द सेम हैपेंड देयर कि मिनी के मन में कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस माइंड में ये था कि सी हैड दिस चाइल्ड फियर। उसके ये दिमाग में कहीं ना कहीं डर था कि दैट का मतलब कि, इफ का मतलब यदि, कि यदि कोई उसके बैग में ढूंढे या इफ समवन लुक इनटू द मैटर, काफी उस जैसे बच्चे वहां पर मिल जाएंगे, वुड बी फाउंड देयर। जी जोगिंदर भाई, ये वुड बी फाउंड देयर ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है सर। एक्टिव बना दे। फाउंड इन देयर। आपसे तो हमारी सुशीला है, ठीक, सुशीला बना देगी, सुशीला बना दे, कर दे काम। कहाँ था वो? सिर्फ वुड बी फाउंड, यहां इसी को तो एक्टिव बनाना है, 3 वर्ड को एक्टिव बनाना है बस। अच्छा, सर वुड फाइंड, फाउंड वुड, ना फाउंड वुड नहीं, वी विल फाइंड है ना, या सी विल फाइंड या वी विल फाइंड, वी विल फाइंड एंड सी वुड बी फाउंड, दे वुड बी फाउंड, वी विल फाइंड देम। हम उनको पाएंगे, वे हमें मिलेंगे। ये बात अभी ढंग से शायद नहीं पकड़ पाए हैं। वे मिल जाएंगे, दे वुड बी फाउंड, और हम यदि पाएंगे तो वी विल फाइंड देम, हमें वो मिल जाएगा। आगे आएगी समझ में, कोई बात नहीं है। इसी बीच दोस्तों क्या होता है, काबुली वाला मीनवाइल इसी सर दौरान, ये भी तो कर सकते हैं, वी वुड फाइंड देम। हाँ वी वुड फाइंड देम, बिल्कुल सही है, वी वुड फाइंड देम। अब की बार कुछ बात बनी है, कुछ मेल्ट हुआ है, कुछ जो है ना, कुछ तो मेल्ट हुआ है। वी वुड फाइंड देम, हमें मिलेंगे। वी वुड बी फाउंड, हम मिल जाएंगे। वी वुड बी फाउंड, हम मिल जाएंगे। वी वुड फाउंड, हमें कुछ मिलेगा। मीनवाइल का मतलब इसी दौरान। मीनवाइल द काबुली वाला स्टेप्ड इनटू द कंपाउंड, स्टेप इनटू द कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है सुशीला, ये कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड
संयुक्त होगा होता है सर। सर, संयुक्त। एक मिनट और नहीं बोलेंगे भाई, एक बार थोड़ा सा। तो यहां संयुक्त का क्या मतलब हुआ? एक बार ये लाइन पढ़ सुशीला। एक दूसरे से जुड़े हुए सर। मीनवाइल द काबुलीवाला स्टेप्ड इनटू द कंपाउंड एंड stood at the door with a smile and an Islamic salute. जी मतलब कि जो काबुली वाले के जो कदम थे एक दूसरे से मिलते हुए से आ रहे थे, धीरे धीरे वो कुछ बता रहा है सर। इसको स्टूड इन द बोलते हैं डोर। अफार कराई, सौ कोस दूर चली गई सुशीला, तो सौ कोस दूर चली गई भाव से, है ना। बात बनी नहीं कि स्टोरी को ऐसे विजुअलाइज कीजिए, स्टोरी को ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि बात बने। जी, कौन बताए भाई, जिसको ये भाव समझ में आया हो बताना एक बार। सर कंपाउंड उसने एरिया होता है ना सर। एग्जैक्टली जिसको बाड़ा बोलते हैं, जिसको बाड़ा बोलते हैं, जिसको डोली चारों तरफ दीवार हो ना, उसको कंपाउंड हो जाएगा। जैसे चार दीवारी आप कह सकते हैं, चार दीवारी जहां खिंची हुई होती है उसको कंपाउंड। ही वॉज सिटिंग ऑन द कंपाउंड वॉल, आपने कई बार सुना भी होगा। ही वॉज सिटिंग ऑन द कंपाउंड वॉल, दे वर प्लेइंग ऑन द कंपाउंड वॉल, है ना। जैसे 5 या 6 फीट की जो दीवार होती है, 4 या 5 फीट की, जो एक चार दीवारी हम अपने घेर के चारों और घर के चारों और बाड़े के चारों ओर जो कर लेते हैं। शायद हो सकता है हरियाणा में कई जगह उसको ओटड़ा भी बोलते हैं, मेरे हिसाब से उसको ओटड़ा भी बोलते हैं, या कंपाउंड वॉल इंग्लिश में कहीं तो कंपाउंड वॉल हो जाएगा। हमारी साइड इसको डोली या चार दीवारी बोलते हैं, कि जो इसकी चार दीवारी थी, कंपाउंड घेर जिसको बोलते हैं ना आप, घेर यदि कभी आपने सुना हो तो। मीनवाइल द काबुली वाला स्टेप्ड इनटू द कंपाउंड, की उस घेर के अंदर आया। हर बार लिटरल देखिए, सुशीला ने गलती ये की कि वो कंपाउंड को लिटरली पकड़ लिया उसने, है ना। उसने लिटरली इसको पकड़ लिया कि कहीं जुड़ा जड़ा कुछ अर्थ मिलेगा ना। कंपाउंड एंड स्टूड एट द स्टोर एंड स्टूड एट द डोर विद अ स्माइल। घर के अंदर आया या सर घर पर आया? जी भाई साहब, अभी तो घर के अंदर आया नहीं है, अभी तो जो इनटू द डोर आपका होते ना, इनटू द कंपाउंड, घर के अंदर, घर के ऊपर बाहर आया होगा सर ये। आ, एंड देखिए स्टूड एट द डोर, डोर पे खड़ा हुआ है तो बाहर ही घर होगा के ना। बाहर जो बाउंड्री सी होती है ना, आंगन के बाद, वो उस पे खड़ा है वो। जी, ऐसा समझिए कि जो घर है, वो जो उसका मकान है जहां पर वो रहते हैं, वो कंपाउंड जो वॉल है ना, जो मेन गेट है, उससे 10-20 फीट अंदर है। जो मेन मकान है जहां पर वो रह रहे हैं, वो उससे 10-20 फीट अंदर है, मेन गेट आगे है। सर बाड़ा भी बोलते हैं। बाड़ा एक अलग चीज हो जाएगा भाई, है ना। आप ऐसे समझिए कि 500 गज का मकान है, 1 मिनट के लिए ये समझ लें। 500 गज उसमें बाउंड्री है, चारों तरफ कंपाउंड वॉल है, और उसके बीच में सेंटर में उन्होंने 5 या 2 या 3 कमरे बनाए हुए हैं। ठीक बात है। तो यदि वो अब मेन गेट को खोल के, ऐसे मेन गेट को खोल के वो अंदर आया और फिर मेरे दरवाजे पर आ गया, और उसके बाद विद अ स्माइल एंड सॉरी स्टूड एट द डोर विद अ स्माइल एंड एन इस्लामिक सैल्यूट, इस चीज को करके ही बता देंगी सुजला, करके दिखा दे इसको। है पागल, रहेगी यूं पागल, देख यूं कैसे यूं करके कर यूं दिखा, कर 1 मिनट रुकना ऐसे। दे, फिर करके दिखाएगी। अब की बार आ गया सर इस्लामिया से। हाँ, ऐसे आधा करते हैं आधा वैसे होना जो पहले वो यूं मार सर। रही है ना, यूं हिंदुओं करती। वाला याद रहा सर, इसलिए। जी जी जी, है ना। आधा ऐसे बोलते हैं ना जी। सो इस्लामिक सैल्यूट, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑल्दो द कैरेक्टर्स इन माय नॉवेल्स प्रताप सिंह एंड कंचनमाला were in dire state, it would be unseemly to call the men all the way to the house and not buying anything. ममता जी, यस सर। एक बार कर दो भाई इस लाइन को सीधा। सर कि मैंने सोचा कि जो वो करेक्टर थे उसके, जो जिसके ऊपर करेक्टर, पहली उसको। बात तो ये करेक्टर नहीं होता भाई, मैं पहले इसको करेक्टर बोलता था, मुझे आज याद है मेरे बेटे ने डांटा था मेरे को, पापा क्या यार तू अंग्रेजी पढ़ाता है, करेक्टर करेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर। जी। हाँ हाँ। तो उन्होंने जो कैरेक्टर जो नोबल में थे, प्रताप सिंह और कंचल माला, उनकी कुछ स्थिति का वर्णन किया है सर। ये कौन सी स्थिति है ये नहीं पता मुझे, पर कुछ स्थिति का वर्णन किया है। जी जी, डायर का मतलब बहुत ज्यादा, डायर के बाद एक शब्द आता है नीड, बोलते हैं कई बार, आई एम इन डायर नीड, भाई सब घनी जरूरत है ना। अच्छा। बहुत ज्यादा जरूरत है कि डायर नीड। और स्टेट का मतलब ऐसे ही किसी चीज में फंसे होना। यहां पर स्टेट की बात करें तो जो 2 नाले से होते हैं ना, 2 नाले से, क्योंकि हमने पहले एक सीन आया था जहां पर वो पानी के अंदर कूद रहे थे,
तो स्टेट का मतलब एक वेयर द टू वाटर चैनल द मीट, वेयर टू वाटर चैनल मीट, दैट स्पोर्ट इज नोन एज द स्टेट, उसको स्टेट बोलते हैं। तो वैसे क्या था कि वो कह रहा है कि मैं जब लिखने लग रहा था तो उस समय मेरे जो कैरेक्टर थे उनको तो एक मदद की जरूरत थी। वे एक ऐसी जगह में फंसे हुए थे कि मेरे को सोचना था अब क्या लिखना है। मैं तो इस चीज के बारे में सोच रहा था कि मां मेरे कैरेक्टर को किस साइड लेके जाऊं। होता है ना राइटर, राइटर किसी भी कैरेक्टर को लिविंग बना सकता है, किसी भी कैरेक्टर को डेड बना सकता है, किसी को बहुत सुंदर प्रेजेंट कर सकता है, किसी को ऐसे बकवास सा प्रेजेंट कर सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितना सुंदर तरीके से लिख पा रहे हैं। तो कह रहा है कि मेरे जो कैरेक्टर थे, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑल्दो द कैरेक्टर इन माय नोवेल प्रताप सिंह एंड कंचनमाला वर इन डायर स्टेट। आगे ममता पढ़ेगी। जी ममता। It would be unseemly to call the man all the अनसीमिंगली, तो इसमें आईएनजी तो नहीं है unseemly जी। to call the man all the way to the house and not buying anything, मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि उसको बुला तो लिया पर उससे शायद कुछ खरीदा नहीं जाएगा, हम्म। कुछ खरीदने के लिए नहीं उसको, मतलब वैसे ही मुझे मतलब जो राइटर था उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसको बुला तो लिया लेकिन उससे कुछ खरीदना नहीं था। मिसिंग द मार्क कह सकते हैं भाई, शायद कहीं ना कहीं बात को गलत समझ गए आप कि इट वुड बी अनसिमली, ये थोड़ा सा दगा हो जाएगा। इट वुड बी अनसिमली, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि किसी को घर बुला भी ले और कुछ खरीदे भी नहीं, किसी को इतनी दूर से बचाओ आइए एक बार, आना 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 एक बार। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वाला है और वहां से एक कोई जो वेजिटेबल वेंडर है वो जा रहा है और मैंने दूर से उसको रुक्का मार के अपने यहाँ फार्म पे बुला लिया और मैं सारी चीजें देख के और उनको ये कह दूं कि भाई साहब वो जो है ना चिकोत्रे हैं, और वो एक चिकोत्रे नहीं ना, फिर तो जा भाई, है ना। तो थोड़ा सा ठीक सा नहीं लगेगा। ऐसे कुछ भी एक ऐसी चीज की डिमांड कर लेना कि और वो उसके पास हो नहीं, फिर क्या है यार तेरे पास, वो बेचारा इतनी दूर आया भी और बाद में आप उसको वापस भेज दें। अरे वो तीखे वाली मिर्च है, या नींबू, नींबू मांग लीजिए कि नींबू है भाई साहब, नहीं से भाई आज नींबू तो नहीं है, जा फिर तो जा भाई। तो थोड़ा सा अनसीमली लगेगा कि इसको बुला भी लिया और इसे कुछ खरीदे भी नहीं। कहता है कि आई बॉट अ फ्यू आइटम्स, मैंने नए चाहकर विलिंगली और अनविलिंगली, चाहकर या नहीं चाहकर मैंने, आई बॉट अ फ्यू आइटम एंड सून आई वाज इन्वॉल्वड इन रैम्बलिंग कन्वर्सेशन with him on various topics including Abdur Rahman, the Amir of Afghanistan and the frontier policy of the Russia and the British। और अब आ ही गया तो मैंने उससे ये इस प्रकार के जो इंटरनेशनल अफेयर थे थोड़ी सी इनके बारे में बात करनी शुरू कर दी। एंड सून आई वाज इन्वॉल्वड, मैं इन्वॉल्व हो गया। आई वाज इन्वॉल्वड ये पैसिव में है, मैं इन्वॉल्व हो गया। मैंने किसी को इन्वॉल्व कर दिया, आई इन्वॉल्वड हिम। मैंने गिरधर 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 मैंने किसी को इन्वॉल्व कर दिया तो आई इन्वॉल्वड हिम, और मैं इन्वॉल्व हो गया तो आई वाज इन्वॉल्वड। मैं इन्वॉल्व हो गया तो आई वाज इन्वॉल्व किस चीज में, इन रैम्बलिंग कन्वर्सेशन। रैम्बलिंग का मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ की कभी वहां की, है ना। जो रैम्बलिंग होता है ना, रैम्बलिंग दैट इज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट, दैट इज नोन एज द रैम्बलिंग कन्वर्सेशन with him on the various topic. After that, I started talking to him. My daughter Minnie, she was there inside the house, and she could not be found anywhere. But when he came, I thought it would be injustice to him. It would be a kind of injustice if I don't buy anything. That's why I decided to buy some item, and after that, I started conversation with that guy. मैंने उससे बातें शुरू कर दी। आखिरकार, फाइनली, आखिरकार, एज का मतलब जब होता है एज ही वाज अबाउट टू लीव द हाउस। कितनी आसान सी लाइन है। राहुल द्विवेदी इसका मीनिंग बता दे, राहुल बता दे भाई। एज ही वाज अबाउट टू लीव द हाउस, जैसे ही वो घर से जाने लगा, जाने ही वाला था यस या सर, जाने हाँ, लगा, जाने कुछ लगा, ऐसा सही कर लीजिए। अबाउट टू का मतलब ऐसा ही होने वाला था। यस जब सर। वो घर से जाने ही वाला था वो पूछ बैठा, सर आपकी बेटी कहाँ है, आपकी छोटी बेटी कहाँ है सर। टू ब्रेक मीन इज अनफाउंडेड फियर, टू ब्रेक मीन इज अनफाउंडेड फियर। मेरे भी एक बात में दिमाग में एक बात आई कि ये लड़की यूं ही रोज की रोज डरती रहेगी, इसका डर निकाल ही देते हैं। चलो इसका डर आज निकाल ही देते हैं क्योंकि अनफाउंडेड है, अनफाउंडेड फियर है, जस्ट लाइक ये फोबिया टाइप है। ये कोई नेचुरल फियर नहीं है। टू ब्रेक, इसको तोड़ने के लिए,
I called her from inside the house. I called her from the inside. Minnie, ओ मिनी, इधर आ बेटा एक बार, जल्दी आ भाई, जल्दी भाग के आ, इधर आ, देख कौन आया है, देख कौन आया है. She came, वो आ गई. She came, वो आ गई. She stood nervously. She stood nervously, पर थोड़ी सी वो नर्वस होके मेरे पास खड़ी हुई, pressing against my body. Pressing against my body की against का मतलब प्रेशर टाइप होता है. अगेंस्ट का मतलब जैसे ये कहें कि सीढ़ी दीवार की लगी हुई है. सीढ़ी दीवार की लगी हुई है तो द लेडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल कहेंगे. समझ पाए, क्योंकि वॉल के ऊपर उसका प्रेशर है ना थोड़ा सा, अगेंस्ट इसको बोलते हैं. तो मेरी बेटी आके मेरे, यानी वो अपना पूरी बॉडी का वजन उसने मेरे ऊपर डाल दिया, मेरे से वो चिपक के सट के खड़ी हो गई, है ना, हट के नहीं सट के खड़ी हो गई. प्रेसिंग अगेंस्ट माई बॉडी, लुकिंग सस्पिशियसली, लुकिंग सस्पिशियसली, और इस प्रकार से लगातार यूं देख रही थी, सस्पिशियसली एट काबुली वाला एंड इज बैग. क्योंकि उसको तो डाउट ये था ना कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के बैग में बच्चे मिलते हैं. जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो जैसे एक आपस में बात करने के लिए कोई टॉपिक होता था कि बात करते ज्यादा मामा की ज्यादा बात करते थे कि मैं मेरे मामा के गया था, है ना, मेरे मामा के मैंने देखा कि वहां पर ट्यूबवेल लिया, बाहर बेटे साहब बाहर देख ले कहीं भी, कि वहां पर कुआं खोद रहे थे और कुएं में छोटे छोटे आदमी निकले, है ना. मेरे मामा के कुआं खोद रहे थे और उसको में छोटे छोटे आदमी निकले, वो कहीं पर जा रहे थे बाजार में कुछ बेचने के लिए. फिर पता नहीं उनको बाहर निकाला ना, तो ये यहाँ की हवा लग गई उनको और फिर वो मर गए, है ना. ऐसी कहानियां सुनी है किसी ने बचपन में? हाँ सर, मैंने सुनी. अच्छा अच्छा, बुधराम ने भी सुनी है. इसका क्या क्या कारण था, चलो बता दो ना क्या कारण था इसका कि ऐसी कहानियां. लेकिन सर पढ़ने लगा था सब सच्चाई सर पता चला कि इंसान से केवल धरती पर ही है. ना, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए भाई साहब, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए. ऐसी कहानियां कोई बता सकता है हम क्यों सुनते थे? एनी आइडिया? जी, हमने सुनी नहीं सर ऐसी. आपने नहीं सुनी है? जी नहीं सुनी. भाई शायद और किसने सुनी है, एक बार मैं थोड़ा सा सिसोदिया से कंफर्म करूं. सिसोदिया सुनी है बचपन में कि कहीं पर कोई खुदाई चल रही थी, छोटे छोटे आदमी मिले? नहीं सर, ऐसे तो नहीं, स्वप्न लोग बच्चों का जो वो बिलीव करते हैं, ड्रीमलैंड इस टाइप का. उसका कारण एक ही था कि एक किसकी, मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ, उस समय बड़ी फेमस, हमारे टाइम में एक बड़ी फेमस बुक आई थी जिसका नाम लिलीपुटियन था. लिलीपुट का नाम सुना है गुलिवर आपने? था. हाँ सर, यस 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 सर. जी, गुलिवर था एक शायद नाम. जगह बड़ा बन गया, बोने एक की बार एक उनकी छोटा बहन थी बोना. सर. जिसकी बाद में, और एक बहन थी एक उनकी. जिस पे बाद में एक मूवी भी बनी थी जंतरम मंतरम के नाम से, आपने जरूर देखी भी होगी. जावेद जाफरी है उसमें शायद, मेरे हिसाब से हीरो उसमें जावेद जाफरी हैं. वो एक बहुत फेमस, यानी लिलीपुट के नाम से. जैसे कई बार आपने एक ब्रांड है अपने आप में, यदि आप बच्चों को ठीक ठाक ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं तो आपने जरूर पता होगा लिलीपुट के नाम से एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों के ही कपड़े मिलते हैं, है ना. जी सर, मैंने बहुत पहनाए अच्छे हैं होते अपने हैं बच्चे सर को. उनके. हाँ, अब बात ध्यान में आ जाएगी. हमारे साथ एक वो वकील साथी होते थे, उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी. हम उसको अक्सर कहा करते थे कि तेरे तो कपड़े जो है ना वो चल लिलीपुट वाले के चलते हैं, वहां मिलेंगे तेरे साइज के जो है ना, और कहीं नहीं मिलेंगे. तो दिस द लिलीपुटियन. और उसी प्रकार से क्या होता था कि जैसे किसी ने कोई कहानी सुन ली, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में काफी कहानियां हुई हैं या इंग्लिश लिटरेचर में कुछ कहानियां हुई हैं, वो कहानी सुनते सुनते वो धीरे धीरे हमारे पास आ गई कहानी, यानी अनदर वर्ल्ड में चले गए. लिलीपुट जो जगह है उसमें हमारा आदमी कोई है, वो जावेद जाफरी है, वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ छोटे छोटे आदमी हैं जो सीढ़ी लगा के उसके ऊपर चढ़ते हैं. वो लेटा हुआ है, वो अनकॉन्शियस हो गया, उसके ऊपर चढ़ते हैं, लाइक दैट वन. ऐसे ही बचपन में मैंने काफी कहानियां पढ़ी हैं. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला ये तो ग्रीक फिलोसफी में है, ये तो इडिपस द रेक्स की कहानी है, ये तो एचलीज की कहानी थी, वो कहानी थी. ऐसी मैंने काफी कहानियां सुनी थी. द सेम इज टू हियर. यही भी वही बात है कि यहाँ बचपन में इस लेडी ने ऐसा सुना होगा. तो क्या था कि प्रेसिंग अगेंस्ट काबुली वाला, द काबुली वाला टुक आउट सम रेजिन एंड एप्रिकॉट्स फ्रॉम इनसाइड द बैग एंड गिव इट टू मीनी. But she refused to take them and remained pressed against my knees with a redoubled suspension. That was how their first meeting ended. सिसोदिया, एक बार आप पूरी लाइन का मीनिंग बता दें तो अच्छा सा लगे मेरे को. यहां से द काबुली वाला, यहां से. जी,
सिसोदिया। यस सर। जी जी, एक बार करना भाई शुरू, यहाँ से एक बार जोर से पढ़ भी दें। The Kabuliwala took out some raisins and apricots from inside the bag and gave it to Minnie. मतलब उसने है ना काबुली वाले अपने बैग से है ना किशमिश और है ना अखरोट निकाल के उस बच्ची के ये देना एप्रीकोट चाहा। क्या होता है? एप्रीकोट क्या होता है? अखरोट सर, अखरोट। अखरोट होते हैं जी। But she refused to take them. अखरोट नहीं मगर होता उसने सर। पुष्पा मना कर रही है, करिए अखरोट नहीं होते सर, अखरोट कुछ और होता है। नहीं सर, मैंने एप्रिकॉट्स यही सुना है सर। कोई बात नहीं, जो पुष्पा ने सुना है उनकी भी सुन लेते हैं। जी पुष्पा, क्या? होता है ये एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं आता। वॉलनट होते हैं तो सर अखरोट। वालनट होता है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सर आई एम कंफ्यूज। एप्रिकॉट्स अलग होते हैं। या वो बता रहे हैं, शायद एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर अखरोट तो वॉलनट बोलते हैं हाँ, सर। या जैसे मूंगफली को ग्राउंड नट बोलते हैं, हाँ, और या बादाम को आमंड बोलते हैं, और शायद काजू को कैश्यू बोलते हैं। refused to take them. जी, ये एप्रीकोट क्या है? सर वो एक जो आते हैं ये वो क्या बोलते हैं उनको, अंजीर टाइप में भी तो कुछ रखते हैं ना सर, उसको क्या बोलते फिग हैं? बोलते हैं भाई, FIG, फिग होता है अंजीर। खुमानी तो नहीं और होती? एक हाँ खुमानी है सर, खुमानी भी खुमानी रखते क्या, हैं। खुमानी क्या पिस्ता होती है? होता है होगा सर, पिस्ता। कई पिस्ता। आइटम रखते हैं सर, वे खैर बादाम कोई बात नहीं, किशमिश आलू सब। बुखारा, आलू बुखारा सुने आपने? आलू बुखारा, रखा हुआ आलू बुखारा होता है। यस सर। तो क्या हुआ? आलू बुखारा एप्रीकोट होता है। सूखे हुए अंगूर को, सूखे हुए अंगूर को तो रेजिन हो जाएगा, किशमिश उसी से बनती है ना, किशमिश तो अंगूर से ही बनती है जी। तो और उसी प्रकार से एप्रीकोट सूखा हुआ आलू बुखारा होता है जी। उसने कुछ रेजिन निकाली, कुछ एक ऐसे आलू बुखारे निकाले अपने बैग से, और इसको मिनी को देने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया लेने से। और सी रिमेंड प्रेस, यानी वो मेरे से ही चिपकी रही, मेरे घुटनों से चिपकी रही, विद रीडबल्ड सस्पेंशन सस्पिशन इट इज सो, यानी अब उसकी शक जो है और गहरा होता जा रहा था। दैट वाज हाउ देयर फर्स्ट मीटिंग एंड, और इस प्रकार से उनकी पहली जो मीटिंग है, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग काबुलीवाला और मिनी की थी, वो इस प्रकार से खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद की बात है, कुछ दिनों बाद की बात है। फ्यू डेज लेटर, एज आई वाज लिविंग द हाउस इन द मॉर्निंग फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, मैं किसी काम के लिए जब बाहर जा रहा था, तो मैंने क्या देखा? मेरी छोटी सी बेटी, मेरी टाइनी डॉटर, मेरी स्मॉल डॉटर, माई टाइनी डॉटर। टाइनी का मतलब, टाइनी का अपोजिट क्या होता है, कौन बताए? टाइनी अपोजिट जी, टाइनी, व्हाट्स द अपोजिट ऑफ टाइनी? अंटेनिम्स, अंटेनिम। टाइनी का अंटेनिम क्या होता है? बिग होगा क्या सर? टाइनी छोटा टोल होता सर, है। टोल। बिग। ह्यूज, 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 HUGE, ह्यूज होता है। एक स्मॉल होता है, स्मॉल मतलब टाइनी, ह्यूज का मतलब बड़ा हो गया, बिग हो गया। माई स्मॉल टाइनी डॉटर, मेरी डॉटर, सिटिंग ऑन द बेंच नेक्स्ट टू द डोर, वो एक बेंच के ऊपर बैठी हुई थी, नेक्स्ट टू द डोर, जो दरवाजे के पास था। स्पीकिंग नॉन स्टॉप विद काबुली वाला, और काबुली वाला से टक 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 चप 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 चप, इस प्रकार से बड़ी चटी सी लग रही थी। Who was parked next to her feet? Who was parked next to her feet? पार्क का मतलब यहाँ पार्किंग टाइप ही लगाइए कि वो उसके पाँव के पास बैठा था। वो आराम से वो ऊपर बेंच के ऊपर बैठी थी, और वो नीचे ग्राउंड पे, इस प्रकार से हु वाज पार्क्ड नेक्स्ट टू हर फीट। नेक्स्ट का मतलब पास में कह सकते हैं, उसके पाँव के पास। लिसनिंग टू हर विद अ ग्रीन, listening to her with a grin, and interjecting now and then in broken Punjabi, in broken Bengali to give his opinion. कोई ये काम, इस लाइन को कुछ करके दिखा दे, एक बार कैमरा ऑन करके इसको करके दिखा दे तो मजे आ जाए। देख लो भाई, कोई कर सकता है जी। एक बार मैं फिर पढ़ के सुना देता हूँ। जब मैं किसी काम से किसी दिन, उस दिन जब बाहर जा रहा था, तो मैंने अपनी छोटी बेटी को उसके पास बैठे देखा, जो नीचे बैठा था। अब वो कैसा था? स्पीकिंग, वो तो उससे नॉन स्टॉप बात कर रही थी, एंड नाउ हु वाज पार्क्ड नेक्स्ट टू हर फीट एंड लिसनिंग टू हर with a grin and interjecting now and then in broken Bengali to give his opinion. Kabuliwala was parked next to her feet and listening to Minnie with a grin and interjecting now and then in Bengali, in a broken Bengali, to give his opinion. Idea? Hmm?
ग्रीन का मतलब हल्की सी स्माइल जो चेहरे पर होती है, दैट इज नोन एज ग्रीन। जो हल्की सी चेहरे पर स्माइल होती है ना। अच्छा, रियली, है ना। इंटरजेक्शन आप समझते हैं ना, एक पार्ट ऑफ स्पीच होती है इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्टिंग का मतलब एकदम से आवाज बाहर निकालना, एकदम। अच्छा, रियली, ओहो, ओबो, इतना बड़ा, नो 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 नो, अच्छा, रियली, है ना। इस प्रकार से इंटरजेक्टिंग इन बंगाली टू गिव हिज ओपिनियन, और अपना ओपिनियन इस प्रकार से, यानी बीच वो कुछ बता रही थी ना। तो जैसे क्या होता है कि ओंकारे बढ़ना नहीं होता है। ओंकारे बढ़ना आप समझते होंगे। यदि कोई बोलने वाले के यदि कोई ओंकारे नहीं बढ़ता है तो मजे नहीं आते हैं। ऐसे तो कौन बात करेगा लगातार, कौन। मैं आपके रिएक्शन देख के, जब मैंने ये कहा ना कि ऐसे कौन बात करेगा, तो जब सविता ने ये गर्दन हिलाई तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि ठीक है भाई, एक प्रकार का ये भी ओंकारा बढ़ना ही था। तो वो क्या है कि जब बीच बीच में एक सुनने वाला बड़ा गजब का हो ना, तो बोलने में भी मजे आते हैं। और ये लग रहा हो कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस्टरडे आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, कल मैं कहीं बाहर था, एंड बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी गुड लिसनर, I realized that there was a time when I was not a good listener. It was about 1:30, 1:30 बजे की बात है। कोई मेरे को एक बहुत सुंदर प्रेम कहानी सुना रहा था। तो मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं, इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। तो ये कह के ही चल पड़ा, ठीक है भाई साहब, नींद आ रही होंगी, सो जाओ फिर आप, है ना, आप नींद आ रही होंगी, सो जाओ, कुछ देर आराम कर लो। ऐसे ही कह के वो चला गया, बिकॉज आई वॉज नॉट अ गुड लिसनर। दूसरी ओर मैं अपनी भांजी को देख रहा था, वो बिल्कुल इस मिनी जैसी है, टोटली सी, वो जस्ट लाइक अ मिनी। खम खम की बात करती रहेगी, कुछ भी बोलती रहेगी, कुछ भी, है ना। सो सी इज ऑल्सो वेरी चेटी, टू मच चेटी इट इज, कि गिर जाएगा तू, ले पापा से तेरे से बात कर ले, फोन पे बात कर। बोला बोला तेरे पापा, है ना, क्या बोला कि तू यामत बेल भवे भवे किस साइड जाएगा, पापा क्या करे थे। जबकि कोई फोन नहीं, एक चाबी का फोन बना रखा है ना, और उसी से यूं बात कर रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट, द सेम सॉर्ट ऑफ सीन इट वाज। दोस्तों, आज तो टाइम शायद इतना ही परमिट करेगा, इतना ही हम कर पाएंगे क्या। ठीक थी क्या ओके क्लास? सर, ओके सर, ठीक थी यार, काम बहुत तो चल बढ़िया। ही जाता है। जोगिंदर भाई, कुछ कोई आइडिया? नहीं हाँ सर, जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, है ना। प्रणाम, की पेंचोइंग।